Last time we saw ratios and percentages. How to convert ratio to percentage? By multiplying 100. And how to convert percentage to ratio? By dividing with 100. So if the ratio is 2 is to... No. If the ratio is 3 is to 8, then the way you find out the percentage is 3 by 8 into 100, and that is 300 divided by 8. You have to have strong division skills, then it will be easy. 300 divided by 8 cancel with 2, 150 by 4 cancel with 2, 75 by 2, and 37.5% is the answer. And percentage to ratio, 37.5%. If you want to convert to ratio, you have to do 37.5 upon 100 is equal to 375 upon 1000, because decimal का एक zero नीचे आ जाएगा. Cancel with 5. 5 sevens are 35. 200. Cancel with 5. 5 15s are 75. Cancel with 5. 5 3s are 15. 5 8s are 40. वापस 3 by 8 मिल गया. Now we'll take a step ahead and do exercise 8.1. You have to do all the sums when the video is on. This is a part of your homework. Do all sums of 8.1 with the video. Alright, let's start. Question नहीं लिखोगे तो चलेगा. Find the ratio. Speed of cycle is 15 km per hour to the speed of scooter 30 km per hour. 15 km per hour upon 30 km per hour. Good thing is the units are same, तो वो गायब हो जाएंगे. 15 upon 30, answer 1 by 2 or 1 is to 2. Both are okay. Second, मतलब B, 5 meter to 10 kilometer. 5 meter, 10 kilometer. The units are not same. किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो वो मीटर बन जाता है, विच इज 5 मीटर टू 10,000 मीटर. कैंसलेशन के बाद अब मीटर मीटर गायब. 1 अपॉन 2000 और 1 is to 2000 is the answer. And 50 पैसे to 5 rupees. 50 पैसे 5 rupees. Units are not same, therefore cancellation will not start. 5 into 100 करो तो रुपया पैसा बन जाता है, which is 50 upon 500. 0 0 cut. 5 upon 50. 1 upon 10 or 1 is to 10 is the answer. Pause the video, finish it nicely, and then move on to the next question. Convert ratio to percentage. 3 by 4 is 3 upon 4 into 100. 4 or 100 cut. 3 into 25. 75% answer. 2 is to 3. मतलब 2 by 3 into 100. 200 upon 3. It's a simple division. 66.66%. अब कुछ नया सीखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. 72% of 25 students are interested in maths. How many are not interested in maths? कितने स्टूडेंट्स हैं? लिखो टोटल स्टूडेंट्स 25. उसमें से ये सेंटेंस देखो, 72% ऑफ 25. दिस इज अ सिंगल इंफॉर्मेशन. आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स. तो लिखो
interested in maths is equal to 72% of 25, और 72% ऑफ 25 निकालना सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। 72% ऑफ 25 मतलब 72 अपॉन 100 इंटू 25। लर्न दिस। 72% ऑफ 25 मतलब 72 अपॉन 100 इंटू 25। कट कट 4 के साथ कट 18 students are interested in maths. Therefore, टोटल में से इंटरेस्टेड स्टूडेंट माइनस कर दो, 25 में से 18 चले गए, 7 are not interested in maths. That's the final answer. आज के होमवर्क में वर्कशीट के अंदर ऐसे सम्स आएंगे, सो ध्यान से सीखो। फोर्थ क्वेश्चन, अ फुटबॉल टीम won 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल? ये लॉजिकल सम है। टोटल मैचेस में से समटाइम्स यू विन, sometimes you lose. Am I right? लिखो ये 2 बार बाजू बाजू में। टोटल मैचेस में sometimes you win, sometimes you lose. There are 2 worlds in maths, the real world and the world of percentage. Keep copying. The real world and the world of percentage. In the real world, question has given some information. A football team won 10 matches. 10 मैच जीत गई. Good. If their win percentage was 40, percentage की दुनिया में win was 40%. Question is, how many matches did they play? मतलब टोटल हमेशा 100% होता। दिस इज फिक्स्ड, बट वी डोंट नो हाउ मेनी मैचेस इज 100%। सो 10 विन्स इज 40%, देन 100% विन्स इज हाउ मच? दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड दिस इज हाउ यू डू इट। चार्ट कॉपी करने के बाद आगे लिखो 10 विन is 40%, then how many matches is 100%? 10 मतलब 40%, तो how much is 100%? परसेंट साथ में होना चाहिए और मैचेस साथ में होना चाहिए। एंड नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे? जो 2 नंबर आमने सामने, सी 40 और क्वेश्चन मार्क आमने सामने क्रॉस में, यू कैनॉट टेक दैट। You have to take the 2 numbers which are across, 10 into 100, और जो क्वेश्चन मार्क के साथ है 40 उससे डिवाइड करो, एंड 10 into 100 अपॉन 40 का जो आंसर आएगा दैट इज टोटल नंबर ऑफ मैचेस। 0 कट, 100 अपॉन 4 and 100 upon 4 is 25. Therefore, total 25 matches were played. Chameli had 600 rupees left after spending 75% of her money. फिर से चार्ट बनाओ। चमेली की लाइफ में कुछ तो पॉकेट मनी है, और वो पॉकेट मनी जितनी भी है उसमें से थोड़ा सेविंग करती है और थोड़ा खर्चा, एक्सपेंस। पॉकेट मनी कितनी है पता नहीं, सेविंग्स कितना है 600 रुपीज। ये देखो 600 रुपीज आर लेफ्ट
आफ्टर स्पेंडिंग, कितना स्पेंड किया पता नहीं, कितना पॉकेट मनी पता नहीं, कट कितना बचा 600 रुपया। अब ये सेम चार्ट परसेंटेज की दुनिया में बनाओ, पॉकेट मनी कितना होता है 100%। इन द वर्ल्ड ऑफ परसेंटेज टोटल इज ऑलवेज 100%, आउट ऑफ विच सम अमाउंट यू सेव एंड सम अमाउंट यू स्पेंड, मतलब एक्सपेंस। कितना परसेंट स्पेंड किया, स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, expense 75%. So this is the scenario where you don't know how much she has saved, but you know 600 rupees was saved. You don't know how much was spent, but you know 75% was spent. You don't know the total pocket money. थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, पहले कॉन्सेप्ट समझो। रियल वर्ल्ड, परसेंटेज वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड का अमाउंट 100% होता है, रियल वर्ल्ड का सेविंग कुछ तो परसेंटेज होता है, एंड रियल वर्ल्ड का एक्सपेंस 75% होता है। ये सम खत्म नहीं हो सकता। द रीजन, दो नंबर साथ में चाहिए, ये खाली है नहीं चलेगा। सेविंग्स में एक बॉक्स खाली है नहीं चलेगा, एक्सपेंस में एक बॉक्स खाली है नहीं चलेगा। इफ यू कंपेयर इट विद द अर्लियर सम, what was the scenario? विनिंग मैचेस 10, टोटल मैचेस पता नहीं, टोटल लॉस्ट पता नहीं। विनिंग परसेंटेज 40, लूजिंग परसेंटेज पता नहीं, टोटल परसेंटेज 100। तो जब कनेक्शन बनाते हैं तो एक कनेक्शन होना चाहिए जिसमें दोनों वैल्यूज है, 100 है लेकिन टोटल मैचेस पता नहीं। हाउ मेनी लूज तो बिल्कुल पता नहीं, बट ये देखो दोनों पता है, 40% इज 10। तो एक ऐसा एरो होना चाहिए जिसमें दोनों पता है। गोइंग बैक टू आवर सम, व्हाट डू वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट? हाउ मच मनी डिड शी हैव इन द बिगिनिंग? स्टार्टिंग में कितने पैसे थे, मतलब ये टोटल पॉकेट मनी स्टार्टिंग में कितना था वो फाइंड करना है। और एक कनेक्शन हमारा जिसमें दोनों वैल्यूज पता है, दैट इज दिस। नो, इट्स नॉट देयर, राइट? तो यहां पे लिखो टोटल माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग्स। दीज आर डे टू डे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये जनरल नॉलेज है कि टोटल पैसों में से थोड़ा खर्चा कर दो तो बाकी का बचेगा। टोटल 100%, उसमें से स्पेंड किया 75%, तो बचा 25%, राइट? 25 हियर। नाउ यू हैव द फर्स्ट रिलेशनशिप जिसमें दोनों पता है। तो 600 रुपया मतलब 25%, तो कितना रुपया 100% होगा? इससे सम सॉल्व हो जाएगा। तो आगे लिखो, देयरफॉर 600 rupees is 25%. How many rupees is 100%? आमने सामने जो दो नंबर्स है उसको पहले मल्टीप्लाई करो, 600 इंटू 100, और क्वेश्चन मार्क के सामने जो नंबर है उसको डिवाइड करो, इज इक्वल टू 2400 rupees is what she had in the beginning. That's your final answer. 2400 रुपए उसके पास थे to start. ये क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं, how much expense did she do? Continue the sum और माइनस करके फाइंड करो टोटल माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग्स।
टोटल हमें पता चल गया 2400। एक्सपेंस पता नहीं, अब तक ये देखो बॉक्स खाली है, बट सेविंग 600 रुपीज है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और ये तुम्हारा एक्स है। माइनस एक्सपेंस सामने जाएगा तो प्लस एक्सपेंस हो जाएगा। 2400 इज इक्वल टू 600 प्लस एक्सपेंस, और 600 सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा। Therefore 1800 इज द एक्सपेंस और स्पेंडिंग अमाउंट, ये भी फाइंड कर दिया। एक्सपेंस 1800। सी द एंटायर चार्ट इज फुल। 2400 मतलब 100%, 600 मतलब 25%, 1800 मतलब 75%। Copy the entire sum and then move on to sum number 6. "60% people in city like cricket. Like cricket is equal to 60%. 30% like football. Like football 30%, and remaining like other games. Other games को पसंद करने वाले कितने हैं वो पता ही नहीं। You can find it out because परसेंटेज की दुनिया में टोटल इज ऑलवेज 100%, और 100% में से क्रिकेट के फैंस को निकाल दो, फुटबॉल के फैंस को निकाल दो, तो 100 माइनस 90 अदर गेम्स लाइक करने वाले 10% है। राइट 10% हियर एंड कॉपी दिस कैलकुलेशन। तो वी हैव ऑल द नंबर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ परसेंटेज। लेट्स मेक द परसेंटेज चार्ट नाउ। टोटल 100%, क्रिकेट 60%, फुटबॉल 30%, अदर गेम्स 10%। पूरा चार्ट फुल है। वेरी गुड, दे कैन नॉट आस्क अस परसेंटेज। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। 60% like cricket, 30% like football, remaining like games, other games. Then what percentage of people like other games? मिल गया आंसर, ढूंढ भी लिया, पूछे उसके पहले ही कितने परसेंट को अदर गेम्स पसंद है, 100 में से माइनस कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 lakhs, 50 लाख लोग हैं सिटी में, बिकॉज इट्स अबाउट अ सिटी, फाइंड एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। 50 लाख, तो ये चार्ट के बाजू में दूसरा चार्ट बनाओ। टोटल लोग 50 लाख, 50 फॉलोड बाय 5 zeros, जिसमें से क्रिकेट कितना, फुटबॉल कितना, अदर्स कितना। एंड वेरी केयरफुली सी द मेथड हाउ टू फाइंड आउट। पीपल who like cricket is 60% of total। मतलब 60% of 50 lakhs। एंड 60% ऑफ 50 lakhs कैसे ढूंढते हैं? 60 अपॉन 100 इंटू 50 लाख। 0000 कट, 6 5 30, 1 2 3 4 5 zeros। आंसर इज 30 lakh people like cricket। फिर से एक बार, पीपल हु लाइक फुटबॉल,
मतलब 30% ऑफ टोटल, मतलब 30/100, नहीं, 30% ऑफ टोटल मतलब 30% ऑफ 50 lakhs, मतलब 30/100 into 50 lakhs. 0000 cut, 3 5s are 15, 1 2 3 4 5 zeros. 15 लाख लोगों को फुटबॉल पसंद. डू इट योर सेल्फ. Entire thing, people who like other games, is 10% of total, is 10/100 into total 50 lakhs. शॉर्ट आंसर आएगा 5 लाख. कैलकुलेटेड योर सेल्फ एंड कंफर्म द आंसर. दैट्स द एंड ऑफ द सम. जितना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में लिखोगे उतना फायदा होगा, याद रखना. But if you do it without method, without writing information, without making the two charts, the chart of percentage and the chart of real world, तो गोथा खा जाओगे. That's the end of first exercise. Sum number 6, 5, 4, 3. ये 4 डेंजर सम है. बहुत कुछ सीखना पड़ेगा. Do your homework properly from the worksheet. Now I will shift to worksheet and do some more sums जितना 8.1 में है उस स्टाइल का. Now what we are going to do is some sums from worksheet. This is your homework 2 where question D and E will come. ABC was in homework 1. Question number D. I will show you few sums. You have to finish the rest of them as homework, and if you have doubt you have to ask me. Keep writing with me. Example, how much is 45 rupees of 100 rupees? मैं सेम सम नहीं करूंगा. How much is 32 rupees of 96 rupees? मतलब परसेंटेज फाइंड करना है कि 96 में से 32 मतलब कितना परसेंट. 32 upon 96 into 100. That's the solution. बड़ा नंबर नीचे आएगा. 32 96 में से, तो जो 96 में से है वो नीचे. 32 1 32 3 100/3. 33.33% is the answer. 32 of 96 is 33.33. एक और एग्जाम्पल लिखो. How much is 12 rupees of 50 rupees? 50 रुपए में से 12 रुपए मतलब कितना परसेंट? The solution is 12/50 into 100. 52s are answer 24%. Age of Radha is 35. How much is the percentage of Radha's age compared to her grandmother? Comparing to grandmother, 35 is how much percentage compared to 105? That's the simplest question. 35/105 into 100. तो आंसर परसेंटेज में लाना है, इसलिए into 100 और डिवाइड करना है राधा अपॉन ग्रैंडमदर. You have to finish it when you are doing your homework. जब तुम बिग बाजार जाते हो तो बड़ा सा बिल आता है. बिल का अमाउंट है 140 रुपीज और बिल में से तुमने ब्रेड लिया था 35 रुपीज का. तो हाउ मच परसेंटेज इज अमाउंट ऑफ ब्रेड? तो 35 अपॉन 140 इंटू 100.
will be the answer in percentage. For example, मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं. Example, I go to supermarket and buy brush, toothpaste and tongue cleaner for rupees 20, 30, 40 रेस्पेक्टिवली. मैंने ब्रश, टूथपेस्ट और टंग क्लीनर खरीदा 20, 30 और 40 रुपए में. What is the percentage of money spent on each? मैंने हर एक पे कितना परसेंट खर्चा किया. पहले टोटल अमाउंट स्पेंड ढूंढो, क्योंकि हर एक में टोटल इज द डिवाइजर. तो 20 प्लस 30 प्लस 40 मतलब 90 रुपीज हैज बीन स्पेंड. तो कितना परसेंट मैंने टूथब्रश पे स्पेंड किया, उसके लिए परसेंट स्पेंड ऑन ब्रश. पहले ब्रश है और ब्रश था 20 रुपए का. 20 rupees spent out of 90 into 100. You have to find the answer. Percentage of money spent on toothpaste. Toothpaste 30 रुपए की 30 upon 90 into 100. You have to find the answer in percentage. मतलब जो भी लिखो परसेंट लिख देने का पीछे. And percentage spent on tongue cleaner 40 upon 90 into 100. So the basic idea of finding percentage is clear to you. Every sum is going to be different. तो समझ के करना, वरना बहुत प्रॉब्लम होने वाला है. For example, Raghu buys a watch for 1200 rupees and puts a battery in it for 36 rupees. 1200 की घड़ी 36 रुपए का सेल. हाउ मच परसेंटेज इज बैटरी कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ द वॉच? बैटरी कंपेयर टू कॉस्ट, बैटरी 36, कॉस्ट 1200, 36 अपॉन 1200 और उसका परसेंटेज फाइंड करना है, इसलिए इनटू 100. दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस सम. There are 33 apples, 45 pears and rest are banana. जब बड़ा सम है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो प्लीज लिखो. एप्पल 33, pears 45, bananas पता नहीं, टोटल 300 fruits. It's very easy to find out number of bananas. टोटल फ्रूट्स में से एप्पल को माइनस करो और पेयर को माइनस करो तो नंबर ऑफ बनानाज मिल जाएंगे. यू हैव टू शो दिस कैलकुलेशन. 300 माइनस 78, 222. और फिर टोटल करके चेक कर लेने का, कोई गड़बड़ तो नहीं की है ना? नहीं की है, नहीं की. सो 222 बनानास. क्वेश्चन इज फाइंड परसेंटेज ऑफ ईच फ्रूट. तो एप्पल का परसेंटेज इज नंबर ऑफ एप्पल्स अपॉन टोटल फ्रूट्स इनटू 100. आंसर विल बी इन परसेंटेज. पेयर का परसेंटेज इज 45 पेयर्स अपॉन टोटल फ्रूट्स इनटू 100. एंड यू नो हाउ टू फाइंड बनाना ऑल्सो. एक ट्रिक सिखाता हूं. इट इज अ लीगल ट्रिक, यू विल नॉट रिग्रेट इट. और ट्रिक कुछ ऐसी है, एप्पल का परसेंटेज फाइंड करो. टक 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 11% आएगा. ओके. पेयर का परसेंटेज फाइंड करो. टक 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 15% आएगा. बनाना का कैलकुलेशन करो ही मत. बिकॉज नंबर ऑफ बनानास फाइंड करने के लिए, अरे परसेंटेज ऑफ बनाना फाइंड करने के लिए you can simply subtract it. टोटल 100% में से
11% एप्पल और 15% पेयर को माइनस कर दो, मतलब -26%. Therefore, answer is 74%. So why do this big calculation where you can find it by subtraction? But communication should be clear. It should be neat. All information should be written. How did you find number of banana? How did you find percentage apple, percentage pear, and how did you find percentage banana by subtraction? ये सब clearly लिखोगे तो marks मिलेंगे. There are 20 sums which you have to do. Let me do 16th sum. It's a very unique sum जो मैंने खुद बनाया है. Find out how much percentage of alphabet A comes in the below sentence. नीचे के सेंटेंस में A कितनी बार आता है वो पहले गिनो. नंबर ऑफ A 1 2 3 4 5 6 7 8. एक बार फिर से चेक कर लो. चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चटनी चटाई. 8. और टोटल नंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इज 6 + 2 8 +++++ जो भी आता है वो टोटल. Therefore, percentage of A is 8 upon total into 100. Sum number 19 and 20 are similar to textbook. तो textbook के sums 3-4 अच्छे से याद रखो तो ये भी आ जाएंगे. So that was question number 1. Question number 1 is all about converting the number to percentage. सारे 20 क्वेश्चन के आंसर परसेंटेज में आएंगे. डू इट केयरफुली, डू इट प्रॉपरली, एंड इफ यू गेट स्टक आस्क मी फॉर हेल्प ऑन व्हाट्सएप. एंड इफ आई डोंट रिप्लाई वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि तुम्हारे लेक्चर के बाद मेरा 9th और 10th का रिकॉर्डिंग होता है. बट आई विल रिप्लाई, लीव सम स्पेस एंड डू द नेक्स्ट सम. और आज का दूसरा सेक्शन ऐसा ही है बट उल्टा है. परसेंटेज को नंबर क्रिएट करना, परसेंटेज से नंबर फाइंड करना है. फॉर एग्जाम्पल 12% ऑफ 200 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स. हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स? तो ये पहला सम जो किया था 8.1 का पहला प्रॉब्लम सम वैसा है. ये 12% ऑफ 200 आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स. तो इंटरेस्टेड इन मैथ्स लिख के दिस इज अ सिंगल इंफॉर्मेशन. 12% अकेले कोई मतलब नहीं है, 200 का मतलब नहीं है. 12% ऑफ 200 हैज अ डिफरेंट मीनिंग. 12% ऑफ 200 मतलब 12 अपॉन 100 इंटू 200. 24 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स. तो हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 200 में से 24 स्टूडेंट कम कर दो तो 76 स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, विच इज योर फाइनल आंसर. सो परसेंटेज टू नंबर. इसको पॉज करके लिख लो. Twelve out of 25 ducks are black. How many are white? तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट डक्स है. सो 12 आउट ऑफ 25 डक्स आर ब्लैक. तो परसेंटेज फाइंड करना है. ए नहीं ना ना ना, ये तो परसेंटेज टू नंबर वाला कैटेगरी है. सो blah 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 40%. 40% out of 25 ducks are black. How many are white? So you have to write first black ducks. Number of black
ducks is 40% of 25. 40% of 25 मतलब 40 upon 100 into 25. 25 4 जा 4 10 जा 10 ducks are black. तो white ducks कितने? Number of white ducks is total ducks minus black ducks. 15 ducks are white. अबे वर्कशीट गायब हो गई. वर्कशीट वेयर आर यू? ओ ये रही. "45% of 500 fruits are ripe. How many are not ripe?" तो नॉट राइप भले पूछा है, पहले राइप फाइंड करो. नंबर ऑफ राइप फ्रूट्स इज 45% of 500. That's a single information. And 45% of 500 का मतलब है 45 upon 100 into 500. Calculate and then subtract it to find how many are not right. 72% of 1200 pencils are not sharp. तो not sharp कितनी पेंसिल है वो पहले फाइंड करो. 72% of 1200 मतलब 72 upon 100 into 1200. कैलकुलेट एंड फाइंड द आंसर. और जो भी आंसर आया उसको 1200 में से माइनस कर दो तो शार्प मिल जाएगी. बिकॉज देर आर ओनली टू कैटेगरीज, शार्प एंड नॉट शार्प. A peacock loses 18 feathers in a day, which is equal to 5% lost daily. How many feathers did the peacock have in total? अब ये थोड़ा डिफिकल्ट सम हो गया, तो ट्राई टू मेक अ चार्ट. टोटल फेदर में से लॉस्ट एंड केप्ट. लॉस्ट मतलब गिर गए, केप्ट मतलब बच गए. पीकॉक लूजेस 18 feathers. 18 feathers lost, विच इज इक्वल टू 5% लॉस डेली. तो परसेंटेज की दुनिया में टोटल तो 100% होता है, जिसमें से लॉस परसेंटेज इज 5%. अगर चार्ट नहीं बनाया तो शायद समझ में ना आए कि करना क्या है. देयरफॉर मेक अ चार्ट, मेक दिस बॉक्सेस एंड सर्च फॉर अ बॉक्स जिसमें दोनों चीज अवेलेबल है. ये रहा लॉस. 18 is 5%. And question is, how many feathers did the peacock have in total? ये फाइंड करना है, मतलब 100% का पड़ोसी फाइंड करना है. After drawing the chart, you have to do cross multiplication. 18 feathers is 5%. How many feathers is 100%? दो नंबर जो आमने सामने है उसको मल्टीप्लाई करो और क्वेश्चन मार्क के सामने जो है उसको डिवाइड करो, आंसर मिल जाए. टोटल नंबर ऑफ फेदर्स. Radha spent 21 rupees from her pocket money. Her father says she spent 15% of her pocket money. What's her pocket money? पॉकेट मनी कितनी है वो पता नहीं, बट कुछ तो पॉकेट मनी होगी जिसमें से सम थिंग्स यू स्पेंड एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू सेव. शी स्पेंड 27 rupees. वी डोंट नो हाउ मच शी सेव्ड, वी डोंट नो हाउ मच शी हैड. बट परसेंटेज की दुनिया में जब चार्ट बनेगा तो वी नो दैट हर पॉकेट मनी इज ऑलवेज 100%. And out of that 100%, पापा ने बोला that she spent 15%. But we don't know how much she saved. Now the question is, what's her pocket money?
एंड व्हाट्स हर पॉकेट मनी मतलब ये बॉक्स फाइंड करना है, और ये बॉक्स फाइंड करने के लिए तुम्हें जो दो चीज प्रेजेंट है उसको पहले कंपेयर करना पड़ेगा. दैट 27 rupees ऑफ द रियल वर्ल्ड इज इक्वल टू 15% ऑफ द परसेंट वर्ल्ड. देन हाउ मच रुपीज is equal to 100%. 27 into 100 upon 15 and you will get your answer. How much was saved? चलो मैं ये सम कंप्लीट करता हूं और थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूं. 3 5 3 9 5 20 180 रुपीज आंसर आ गया. हर पॉकेट मनी 180 रुपीज पॉकेट मनी. 27 खर्च दिए तो सेविंग फाइंड करने में कितना टाइम लगेगा? जस्ट माइनस करना है. और 100% में से 15% स्पेंड कर दिए तो कितने सेव किए वो भी माइनस करना है. दैट्स ऑल. सो इट्स नॉट अ बिग डील. 100 minus 15 85% saved and 180 minus 27 153 rupees saved. तो सब कुछ फाइंड कर सकते हैं. डिपेंड्स के क्वेश्चन में क्या पूछा है. जितना पूछा है उतना फाइंड करने का. व्हाट इज पॉकेट मनी या व्हाट इज हर पॉकेट मनी एंड यू हैव टू फाइंड दैट. हर पॉकेट मनी इज रुपीज 180. 25% of the boys like PUBG, 40% like NFS and the rest likes KRS. तो बड़े बड़े सम्स में डेटा लिखो, परसेंटेज दिया हुआ है. सो फर्स्ट मेक द परसेंटेज वर्ड दैट 100% of the boys may say 25% like PUBG, 40% like NFS and the remaining likes KRX. बट रिमेनिंग दिया नहीं है, बट यू कैन इजीली कैलकुलेट. 100 में से 40 गया 60 में से 25 गया, रिमेनिंग 35% लाइक KRS. सो परसेंटेज चार्ट इज कंप्लीट. लेट्स लुक एट द रियल चार्ट. फाइंड हाउ मेनी बॉयज लाइक ईच गेम इफ देयर आर टोटल 700 बॉयज. सो 700 बॉयज का चार्ट बनाना है. And we have to find how many likes PUBG, how many likes NFS and how many likes KRX. Compare करके आ जाएगा. So which two things you will compare first? 700 boys is 100%. Then how many boys is 25%? Cross multiplication. 700 boys is 100%. Then how many boys is 25%? Calculate, you get this answer. फिर से वही करो. 700 boys is 100%. How many boys is 40%? And third time also 700 boys is 100%. How many boys is 35%? और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिखोगे तो याद रखना, जो दो नंबर आमने सामने है उसको पहले मल्टीप्लाई करो and then divide with the third number. 20 sums of first category and 10 sums of second category you have to finish by today night, latest by tomorrow night. और याद रखना, अगर होमवर्क नहीं करोगे तो ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आने वाला है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक. बाय.